सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने विशाखापट्टनम में मुनक्कदा प्रेसिडेंटल फ्लीट रिव्यू का जायजा लिया। इस बार मुल्क भर में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी मुनासिबत से मशरक़ी बहरी कमान की जानिब से फ्लीट रिव्यू प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने विशाखापट्टनम का दौरा करते हुए बहरिया के बेड़े का जायजा लिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं। आज उन्होंने 60 जहाज़ों, आबदोज और तैयारों पर मुश्तमिल बहरिया के बेड़े का जायजा लिया। इस मौके पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। It gives me great pleasure to be here with you today. I am pleased to review the readiness of the Indian naval ships, submarines, aircraft and other elements of our maritime power today. The excellent parade of ships, aircraft and submarines showcases the professional competence and determination of the maritime services of the nation. The parade also showcases the preparedness of the Indian Navy for any contingency. This beautiful city of Visakhapatnam, also popularly known as Vizag, has been an important port for centuries. Historically, it has been known as a crucial hub of transnational trade and commerce. From the 6th century before Common Era to the 21st century, Vizag continues to be an important center for industry and economy. Its strategic importance is underlined by the fact that the headquarters of the Eastern Naval Command of the Indian Navy is located here. Ladies and gentlemen, Vizag made a glorious contribution during the 1971 war. The Golden Jubilee celebrations of India's victory in that war under Swarnim Vijay Varsh concluded recently. I recall the heroic action of the Eastern Naval Command in the naval blockade of the then East Pakistan and the sinking of Pakistan's submarine Ghazi. That was a decisive blow to Pakistan. The 1971 war remains one of the most emphatic victories in our history. डिफेंस के पीआरओ कैप्टन सी.जी. राजू ने प्रेसिडेंटल फ्लीट में हिस्सा लेने वाले बहरिया के जंगी जहाज़ों आबदोज की तफसीलात बताई। We have just witnessed the 11th edition of the President's Fleet Review, which is being celebrated during the auspicious 75th anniversary of our India's independence, where the entire nation is celebrating as Azadi Ka Amrut Mahotsav. Some of the significant features of this President's Fleet Review is that there are 60 ships which are participating from the Navy, 55 aircraft and helicopters, 3 submarines, and another important feature is the latest acquisitions which are significance of Make in India initiative of INS Visakhapatnam, the stealth destroyer, and INS Vela, which have been recently inducted into the Navy, both of them taking part in this President's Fleet Review at Visakhapatnam. Another significance is out of the 60 ships, 47 ships from the Indian Navy, 3 Coast Guard ships and SCI and ship from the Ministry of Earth Sciences, all of them have been constructed. करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू की जानिब से कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद के इश्तराक से 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ। रायलसीमा आंध्र प्रदेश के शहर करनूल की इल्मी व अदबी शख्सियतें के उन्वान से सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें काटासानी राम भोपाल रेड्डी रुकन असम्बली ने मेहमान खुसूसी और करनूल के रुकन असम्बली हफीज़ खान ने मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत की। प्रोफेसर एस.ए. सातरबानी रजिस्ट्रार डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी ने सेमिनार की सदारत की। 2 रोज़ा सेमिनार में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स के अलावा करनूल की इल्मी व अदबी शख्सियात ने शिरकत की। Of the state of Andhra Pradesh, we are requesting both the honorable MLAs to kindly pass a resolution in State Assembly demanding to provide MCET examination papers in Urdu language. आंध्र प्रदेश के वजीर IT मेकापाटी गौतम रेड्डी के अचानक इंतकाल से
वाईसीपी लीडरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जिला करनूल के पानियम रुकन असम्बली काटासानी राम भोपाल रेड्डी ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। करनूल वाईसीपी ऑफिस में आज जहानी रियासती वजीर मेका पार्टी गौतम रेड्डी की तस्वीर पर फूल माला पेश की गई। इस मौके पर वाईसीपी के लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली काटासानी ने कहा कि गौतम रेड्डी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की है, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मरकज़ बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल के डायरेक्टर प्रोफेसर पी फजलुर रहमान को डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल का वाइस चांसलर मुक़र्रर किया गया है। महकमे आला तालीम हुकूमत आंध्र प्रदेश के जारी करदा एलामिया के बमूजिब गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन बहैसियत चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पी फजलुर रहमान को 4 साल के लिए डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुक़र्रर किया है। इस मौके पर प्रोफेसर पी फजलुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी करवाई। आंध्र प्रदेश गवर्नर साहब बिश्वभूषण हरिचंदन साहब का और हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री जगन मोहन रेड्डी साहब का, जो कि मुझे उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पोजीशन पे करार किया है। इसके लिए मैं उन दोनों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। और दुबई एक्सपो में हुकूमत आंध्र प्रदेश की नुमाइंदगी करने वाले करनूल के रुकन असम्बली हफीज़ खान एक हफ्ता दौरे के बाद करनूल वापस हुए। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने इस दौरे को कामयाब करार दिया। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने कहा कि मुख्तलिफ कंपनियों और हुकूमत के साथ कई मुआहदे हुए हैं। हफीज़ खान ने कहा कि कई कंपनियों ने आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी के लिए रजामंदी ज़ाहिर की है। दुबई एक्सपो जो चल रहा है, जहाँ पर सारी दुनिया से लोग अपना पेविलियन लगाए हुए हैं, वहाँ पर इंडिया पेविलियन में पहली वक्त हम लोग आंध्र प्रदेश स्टेट की तरफ से हमारा डिस्प्ले रखे थे, ताकि लोगों को मालूम हो कि आंध्र प्रदेश स्टेट के क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या कल्चर है, वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बोलकर बताने की। और उसके साथ साथ जो है कई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग्स हुए, बहुत अच्छे मीटिंग्स हुए। उसी तरीके से गवर्नमेंट टू बिज़नेस के मीटिंग्स हुए हैं और बिज़नेस टू बिज़नेस के मीटिंग्स भी हुए, क्योंकि हमारा 20 लोगों का इंडस्ट्रीज का डेलीगेशन भी हमारे साथ चला था। तो विजयवाड़ा गवर्नमेंट अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट किरण कुमार ने बताया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और 108 सर्विस के दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए एक शोबा कायम किया गया है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मरीजों को हंगामी हालात में परेशानी का सामना न करना पड़े। हालिया दिनों में ये शिकायत सामने आई हैं कि 108 एम्बुलेंस को गवर्नमेंट अस्पताल तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट किरण कुमार ने कहा कि एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचने तक अस्पताल में जरूरी इंतजाम किया जाएगा। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में मरकजी वजीर अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किए गए सवाल का जवाब दिया। इस चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा उठ गया। आप लोगों ने उत्तराखंड के चुनाव के 2-3 दिन पहले ही आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, तो क्या आपकी सरकार इसको आगे बढ़ाएगी? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड नई सरकार जो बनने वाली है इसकी घोषणा में इसको शामिल किया है। अंत में जी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तो मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में ये हमारी सरकार बनने के बाद हम इसको करें। पर ये देश भर में लागू होगा? वो बहुत व्यापक चर्चा करनी पड़ती है, करेंगे सबसे चर्चा। पर ये शुरुआत है। हाँ, ये शुरुआत। आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।